It all began in 2020, and 2020 was the time of COVID. So I had just completed my 10th boards, and it was the time to choose the streams. So earlier I was going for PCMB, but after consulting with my seniors, after having a lot of discussions with my seniors, I chose medical as my mainstream. But however, it doesn't mean that I was not good at maths. I was pretty good at maths, but I had more interest towards medical sciences, so I chose medical as my mainstream. Since this was the time of COVID, so we were shifted to screens, we were shifted to online platforms for our classes. And I had appeared for ANTHE exam, which is like one of the scholarship exams of one of the most prestigious institutes in India. And I got scholarship of around like 60 to 70%, and I got admission in the offline coaching. But due to COVID, this also happened, through online mode only. So yes, I took coaching, and earlier I had no idea of how to study through online systems, because I was like an average student only. It takes me a lot of time to understand the things. So it was like that situation, and earlier I was able to manage both the things, like my coaching wala part and school wala part also. But be with the times, it really became difficult. Why? Because स्कूल में उनका अपना तरीका है एंड कोचिंग का अपना तरीका है. एंड लाइक मैं केवीएस का स्टूडेंट था. सो हमारे स्कूल में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते थे. लाइक every month you are given some project files, like practicals and दुनिया भर की एक्टिविटीज़. आई रिमेम्बर कि हमें बोला था एक बार कि हमें एक स्किट तैयार करनी है, और वो भी ऑनलाइन, मतलब वीडियो बना के. और उसके अलावा मुझे बोला गया था कि मुझे एक वीडियो तैयार करनी है जिसमें मैं योगा कर रहा हूँ. सो मतलब इस तरीके की चीज़ें बोलते थे. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम केवीएस, तुम्हें पता होगा कि इंस्पेक्शन का ही एक अपना रूप रहता है वहाँ पे, है ना. सो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी, लाइक जिसमें दूसरे स्कूल के टीचर्स जो हैं वो आपके स्कूल में आते थे. मतलब ऑनलाइन में भी वो हमारे साथ जुड़ते थे, हमसे बातें वगैरह करते थे. उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करा रहे हैं. सो इतना कुछ होता था ना कि कोचिंग की तरफ ध्यान जो था वो बहुत कम जाता था. सो इट वाज difficult for me at least to manage both the things. But however, coaching helped me to understand the concepts. And but up to school level I was able to score good. Itna bhi nahi, but I was able to score like 80 to 81% in my class 11th. We were moved to class 12th now, and again the same shit was happening. Earlier I was able to manage both the things, but mid and last mein to it really became difficult for me to manage both. And class 12th was the board class. I'm from CBSE board obviously, and उस time पे the classrooms were happening through online mode only. And और syllabus was divided into two terms, like term 1 and term 2. term 1 का अपना syllabus था and term 2 का अपना syllabus था. And obviously coaching में तो वो सब पढ़ा रहे थे, उनकी अपनी speed थी. It added like more difficulty to grasp the things. चीजों को grasp करने की जो speed है ना, वो like धीरे धीरे ही increase होती है if you are like an average student like me. जैसे तैसे करके क्लास 12th भी मैंने पास करी, like with 86 point something percent. And after the completion of my class 12th, only 1.5 to 2 months was left for NEET 2020, to which was like my first attempt. And in this short time, I was not being able to understand how to handle syllabus of class 11th and 12th, that too of three subjects, all together. So it really made me weak internally, and I had given up like 1 week before the exam because I was not being able to understand. But I was trying to study biology because this was like scoring. However, didn't help me much. So I was not even scoring 200 in my first attempt. I don't remember the exact score because I had just एक झलक ही देखी थी अपने स्कोर कार्ड की.
but I remember it was not even 200. So now it was the time for a first drop offline coaching phase पर, because the COVID had gone at that time. And offline coaching में during the initial phase I was able to manage the things right. So I was scoring around 500, and I was like, with the time it will get increased. But during the mid phase, during the last phase of the coaching, the speed of the syllabus had really increased too much, because हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी अगस्त से, एंड अगस्त से ऑब्वियसली अप्रैल अप्रैल नहीं मार्च तक का टाइम देते हैं ना वो अपना सिलेबस के लिए. सो मिड में और लास्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस जो था उन्होंने स्पीड उसकी इंक्रीज कर दी थी. And my mistake was I got purely dependent on coaching. I did not make any kind of extra efforts. You know, a lot of things are there when you're studying offline. Sometimes you're getting distracted with a lot of things. You know, coaching के अपने दोस्त बन जाते हैं. Sometimes you're into friendships, and you know, a lot of things were there. So again, at last, I could not handle the burden of like this much of syllabus. It did not go well. Like I got 390 in my NEET 2023 exam. After this, you know, I really got depressed, you know, about my life now, what I will do, what should I take now. And I was totally blank because I was not being able to decide what should I do next. I was just, you know, totally blank. After some time, I told my parents that now I will take my second drop, and I know what are my mistakes, and I will work upon it, and now I will definitely get my selection. So my parents allowed me to take my second drop. So now this was through online mode only. I had taken the subscription of online platform. I started my preparation in September, because before that I was just you know, traveling, sometimes to relatives home, sometimes you know, to the trips. So I was just traveling. So I started my preparation in the last phase of August. I purely dedicated my whole time to studies properly. मतलब सुबह उठना, I used to wake up at 4, and मैं रात तक पढ़ता था कुछ 9-10 बजे तक, फिर उसके बाद मैं सो जाता था. मतलब ये रूटीन रहता था मेरा. And I would start with chemistry, then physics, and then last में bio. Because bio के concepts जो थे वो मेरे first drop से मतलब strong हो चुके थे, except for the genetics. तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी second drop में. Then online test दिए थे मैंने. I used to score around 550. एंड लास्ट में मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी जिसमें मेरा स्कोर कम हो गया था. आई वाज स्कोरिंग बिटवीन 450 टू 500 के बीच में. सिंस आई हैव रिजर्वेशन, सो इसलिए मुझे लग रहा था इस बार सिलेक्शन हो जाएगा. सो 2024 का मैंने नीट का एग्जाम दिया, एंड आई स्कोर्ड 507, बट रैंक वाज लिटरली टचिंग 2 lakhs. मतलब it was around 1.9 lakh something. So आई वॉज नॉट नोइंग अर्लियर कि मतलब कि इतने रैंक पे मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. बट मैंने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, बट मुझे अलॉट नहीं हुआ था. वाई? बिकॉज ऑफ दीज 2024 वाले स्कैम्स. इस टाइम पे मुझे लगा था, पता क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना कट ऑफ गई थी 511, एंड मेरा स्कोर था 507. सो अगर मेरा एक क्वेश्चन सही होता तो मैं आज मेडिकल कॉलेज में बैठा होता. बट it didn't happen. It was not in my fate. So I इस टाइम पे मुझे लग गया था पता कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे सकती है इस एग्जाम में. एंड आई नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मतलब जो असली में मेहनत करते हैं उनको तो 600 प्लस आते हैं, बट यार हर एक कैटेगरी का कंपटीशन अलग होता है. So it is not an excuse, and also whenever you are preparing for an exam, कोई भी ये नहीं सोचता कि यार मैं कैटेगरी से हूँ तो मुझे इसलिए इतने ही नंबर लाने हैं. Like during the last phase of my second drop also I was like कि यार मुझे और मेहनत करनी है जिससे कि मुझे 600 क्रॉस हो जाए, but it didn't happen.
सो सेकेंड ड्रॉप भी मेरे साथ नहीं था, ठीक है। आई हैड टोटली गिवन अप ऑन दिस एग्जाम एंड अब मेरा मन नहीं था और नीट की प्रिपरेशन करने का, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी थी एंड नाउ आई वाज लाइक किसी और कोर्स में देखते हैं। मुझे बीएमएस के टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे एंड बाकी कोर्स में मुझे नहीं जाना था, लाइक बीडीएस में नहीं जाना था और वेटरनरी का मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो आई वाज लाइक कि मैं बीएमएस में ही चले जाता हूँ, बट मेरी मम्मा ने मुझे अलाउ नहीं किया था। मेरी मम्मा बोली थी कि तू थर्ड ड्रॉप ले ले, बिकॉज माई मॉम वांट्स कि मैं एमबीबीएस करूँ एंड थर्ड ड्रॉप वॉज लाइक अ वेरी रिस्की टू मी। मैंने बहुत लड़ाई करी थी अपने पेरेंट्स से कि यार मुझे थर्ड ड्रॉप नहीं लेना है, ये मतलब यार तुम्हें ना खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप कोई भी चीज करोगे ना, वो कभी भी आपके आपके फेवर में नहीं होगी, ठीक है। अगर हो भी जाएगी ना तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज योर वर्थ। तो थर्ड ड्रॉप मैंने ले लिया जस्ट बिकॉज माई मोम वॉज सेइंग। एंड थर्ड ड्रॉप में भी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए थे। मैंने स्टार्टिंग से बहुत सारे टेस्ट दिए थे मैंने एंड मैंने अपना सिलेबस ना टाइम से पहले कंप्लीट किया था। फेब की एंडिंग में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था और यू नो ड्यूरिंग माय ऑफलाइन टेस्ट आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 550 एंड समटाइम्स लाइक 480, मतलब 480 टू 530 40 इनके बीच में तो मेरा स्कोर रहता था एंड आई वाज लाइक अब तो होना ही है पक्का सिलेक्शन। बट जब नीट 2025 का पेपर आया, पेपर देते टाइम मेरी स्टेट ऑफ माइंड जो थी वो क्या थी वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पेपर। आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर दैट पेपर जो कि पहले से बने हुए आते हैं ना, मतलब जिनका पैटर्न लाइक 2022 2023 2024 मतलब इस तरीके का था। इतने ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कि फिजिक्स में तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी पैराग्राफ्स लिखे हुए थे। तो मेरा क्वेश्चन पेपर का सेट था 45 और मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे अपना सिनेरियो क्या रखा था कि पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है, फिर बायो एंड लास्ट में केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मेरा वीक पॉइंट था इसलिए। बट 45 का सेट था और मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मैंने 5 मिनट लग गए मेरे को उसको एंड मुझे समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन। मैं सेकंड पे गया, वहाँ पे भी मुझे समझने में 5 मिनट लग गए। मुझे नहीं समझ में आया मैं कैसे कैलकुलेशन करनी है इसकी या फिर क्या कंसेप्ट लगना है। फिर 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। मेरा कॉन्फिडेंस जो था अब वो बहुत ग्राउंड पे पहुंच चुका था। मैं सीधा बायोलॉजी पर गया एंड बायो में मैंने वो फ्रेटर्निटी ट्विंस वाला कुछ क्वेश्चन था वो देखा। मुझे नहीं पता चला कि क्या करना है। मैंने बायो के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझसे नहीं हुए थे एंड इस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका था। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया एंड उस टाइम पे मतलब स्टेट ऑफ माइंड आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं आपको। अचानक से पैटर्न बदल जाना इज लाइक वेरी डिवास्टेटिंग थिंग्स फॉर you know any kind of aspirant when you are preparing for any kind of exam. So the situation was really worse and नी 2025 का भी पेपर नहीं गया। बट अर्लियर लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आ जाए। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इतने मार्क्स पे मेरी इतनी रैंक आती है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट रैंक जो थी वो पिछले साल से भी बहुत नीचे चली गई, तो कहाँ ही सिलेक्शन का सवाल पैदा होता है यहाँ पे। सो अगेन आई कुड नॉट मेक इट। सो द थिंग इज कि यार मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि आपकी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है एंड आई स्टिल बिलीव इन दिस। तो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना सीखा है। या समटाइम्स किस्मत साथ नहीं देती है, एवरी टाइम यू विल फील लाइक दैट, बट यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू हैव टू डिसाइड। नीट 2025 के बाद आई वाज नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड कि यार मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि
मैं एक डिसीजन नहीं ले पा रहा था. दिस इज समथिंग विच रियली मेक्स यू फील सो डीमोटिवेटेड इन लाइफ, सो अंडर कॉन्फिडेंट. एंड आई वुड नॉट से कि नीट प्रिपरेशन बहुत ही वर्स्ट फेज था मेरी लाइफ का. आई बहुत सारी लर्निंग्स थी. जो आप चाहते हो हमेशा वही नहीं होगा. हार्डवर्क आपको करते रहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए अपने हार्डवर्क से. सो वो सेटिस्फेक्शन मुझ में है, क्योंकि मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं अपनी प्रेपरेशन में क्या नया ऐड करूं जिससे कि मेरा स्कोर इम्प्रूव हो जाए. एंड मुझे ड्रॉप की लूप में नहीं फंसना है कि यार मैं 5-5 6-6 ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर सिलेक्शन ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ये मुझे नहीं करना है. सारे लोग एमबीबीएस नहीं करते हैं. एंड everyone will go for MBBS, then who will go for other professions which are really important to serve our environment, to our nation, right? It was like very sensitive time for me. I cried a lot, honestly, and I don't know what to say. I know for people only results matter. Even your parents want to see your result, and at their positions they are also right, because they want us to be in good position. But the thing is, it's your life. You have to make your own path, right? You have to decide by yourself. You are alone in your life journey, to be honest. A lot of people will, try to pull you down at every phase of your life, but it's only you who will, make a step forward. And it really takes energy. So be confident and be positive in your life. That's all what I want to say.